स्टॉक मार्केट्स में जनता कभी पैसे नहीं कमाती. स्टॉक मार्केट्स में मैक्सिमम पीपल will always lose money. It's a fact in stock markets. I know it is sad, but today I'm going to explain you why this happens. Today I'm going to explain you the investor psychology. Today I'm going to explain you the displacement theory. Let's get started. Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And we provide a full stock market course from the very beginning to the very advanced level with a lifetime mentorship. If my friend you are interested, link is in the description below. ठीक है, now let me start with the video. और आज का वीडियो let me tell you बहुत exciting होने वाला है. So please be sure to watch this video till the very end because आज your minds will be blown. मतलब I'm going to dig in deep and I'm going to tell you the harsh realities जो markets में हैं and I'm going to tell you the fact that why crowds will never earn in stock markets. Why is that जनता यहाँ कभी पैसे नहीं कमाएगी. ठीक है, एक एक करके जाएंगे, आराम से सुनेंगे, समझ नहीं आएगा वीडियो दोबारा देखना, बट बी श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. अब देखो, इट हैज़ बीन 11 years फॉर मी इन स्टॉक मार्केट्स. इन 2010 माई स्कूल फिनिश, उसके बाद से मैं स्टॉक मार्केट्स में लग गया. अब 2021 हो गया है, सो यू कैन से 11 years. आई थिंक ये साल पूरा नहीं हुआ तो 10-11 years ले लेते हैं, राइट. एंड आई हैव सीन पीपल कमिंग एंड गो इन मार्केट्स. मार्केट्स में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं. मुझे कितनी बार पता चलता है कि ये बहुत हाउस वाइफ से होता है. जो होम मेकर्स होते हैं, होम मेकर्स ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे. बोलेंगे हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं 3 महीने बाद खत्म. कोई लाइन को आता है, अरे यार स्टॉक मार्केट्स में मैं आ रहा हूँ 3 महीने बाद खत्म. मुझे दोस्त 11 साल हो गए मार्केट्स में. हर 6 महीने आई कैन टेल यू मेरे पास नए लोग आते थे, यार हर्ष मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, मुझे सिखा दो, ये कर दो वो कर दो. मच बिफोर गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस ऑल्सो. उसके बाद मैं उनको देखता रहा. अब वो मार्केट्स में है भी नहीं. दे हेट स्टॉक मार्केट्स because 95% people do not earn in stock markets. And if you see the facts, if you go to Quora, do a simple research, आप खुद देख लोगे. That is why stock markets is perceived to be a gamble. Factually, on paper, on fact, stock market is the best investment to make. It's the best place to be at. इसमें तो कोई discussion है ही नहीं. तभी भी stock market is perceived to be a gamble, a complete gamble. अब आप सोच सकते हो कि अच्छा वो लोग बेवकूफ थे. नहीं, वो लोग बेवकूफ नहीं हैं. They are guiding you in the right direction because they have suffered a loss and they don't want you to suffer a loss. And the sad part is that 95% of the retail investors, whoever invests in the retail investors, they will always lose. अब समझते हैं ऐसा क्यों है. Why is this the majority always loses? क्यों? Because there are some common mistakes. There are some common mistakes which the majority makes. और ये mistakes क्या होती हैं? Behavioral mistakes, emotional mistakes, psychological mistakes. जब मैं बताता हूँ ना कि one is bent, psychologically bent not to earn in stock markets, वो यहाँ पे प्रूव होता है. वो ही पॉइंट है, इसको मैं और डीप जाके आपको समझाना चाहता हूँ. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट थ्योरी. ओके, नाउ जस्ट टू मेक श्योर मैंने कोई पॉइंट क्लियर नहीं किया. ठीक है, यू नो व्हाट आर द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड्स एनी इन्वेस्टर हैज सेड? द मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड्स एनी इन्वेस्टर हैज सेड, आर सेइंग एंड विल से इन द फ्यूचर, ये चलता रहेगा जिंदगी भर तक, इज दिस टाइम इट्स डिफरेंट. The most expensive word said by any investor around the globe is this time it's different. जबकि भाई साहब मार्केट्स हर बार सेम होता है because the human psychology is absolutely the same. There would be phases जहाँ पे आपको you won't think logically and you will feel कि नहीं यार ये बार डिफरेंट है, इस बार तो आग लग गई है, ये तो बहुत डिफरेंट है. मार्केट्स या तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा. This time it's different. पहले जो हुआ हो गया. द पास्ट इज द पास्ट बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट. एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक दिस वे. अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग दिस वे राइट नाउ ऑल्सो थिंक क्या बोल रहा हूं मैं, बट राइट नाउ ऑल्सो. ठीक है, नाउ लेट मी शेयर द सम फैक्ट्स विद यू. अब अभी करंट मार्केट्स को देखते हैं. निफ्टी पीई इज एट 41. It is the most ridiculous level to be at. ठीक है, when Nifty PE is above 30, above 32, it is supposed to be extremely high. अभी Nifty PE is around 40, 41, which is ridiculously high.
ठीक है। इफ यू डोंट नो व्हाट पीई इज, अगर आपको पता नहीं प्राइस अर्निंग क्या है, ये वीडियो देखो प्राइस अर्निंग पे, इट विल क्लियर एवरीथिंग आउट। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब दूसरा काम करता हूँ, लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू एंड लेट मी शेयर द सेंसेक्स ग्राफ विद यू। ठीक है, ये रहा। अब आप देखोगे यहाँ पे सेंसेक्स इज एट 51,000 पॉइंट्स करंटली। नाउ लेट मी जस्ट जूम आउट, थोड़ा उसको ग्राफ को छोटा किया जाए। एक सेकेंड गाइस, अब एक हाथ से कर रहा हूँ तो थोड़ा हो सकता है मुझसे थोड़ा टाइम लगे। ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे द मार्केट्स हैड करेक्टेड, दिस वाज द कोविड क्रैश दैट हैपेंड। अब आप देखोगे मार्केट्स हियर वर एट 25,000 एंड दिस वाज एट 25th मार्च, उसको अप्रैल लगा लेते हैं। इन अप्रैल मार्केट्स वर एट 25,000, नाउ द मार्केट्स आर एट 51,000, डबल। 25,000 से 51,000, 50,000, 25 से 50,000, सीधा डबल। और ये कितने टाइम में डबल हुआ है मार्केट्स? ये अप्रैल में था, तो अप्रैल मई जून जुलाई 9-10 महीने, 9-10 महीने में मार्केट्स हैव डबल्ड। डू यू थिंक इट इज लॉजिकल? इट्स नॉट। तो अगर लेट मी जस्ट ड्रॉ सिंपल ट्रेंड लाइन फॉर यू टू गेट एन आइडिया। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे मार्केट्स डबल हो चुके हैं। सबसे पहला ही यही बहुत इरेशनल और इलॉजिकल है। एक लॉजिकल आदमी को इस समय क्या बोलना चाहिए था? अरे ये तो इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, बाहर निकलो मार्केट से। बट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। लोग क्या बोल रहे हैं? अब नहीं, अब मार्केट्स नहीं रुकेंगे। ठीक है, अब आई गिव यू अनदर रीजन। अब लेट्स अज्यूम, चलो कोविड का क्रैश हो गया, इट वाज आई एग्री, इट वाज कंप्लीटली अननेचुरल और अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन। ठीक है, विच नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड। लेट्स हम मानते हैं कोविड सिचुएशन को हटा देते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि कोविड क्रैश कभी हुआ ही नहीं था। फिर देखते हैं व्हाट वुड द मार्केट्स बी लाइक। तो हल्का सा मैं जूम आउट कर दूं। ठीक है, तो इफ आई मेक नॉर्मल ट्रेंड लाइन्स में बनाता हूँ, लेट मी जस्ट मेक द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। ठीक है, मैं बस रफली इसको ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, दिस इज द सपोर्ट, इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी यहाँ कहीं पे। फेयर, सब देख रहे हैं? फेयर, ऑफ कोर्स आप देख रहे हो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब लेट्स अज्यूम कि कोविड क्रैश नहीं हुआ, सिर्फ सपोर्ट से जैसे नॉर्मल मार्केट ट्रेंड में ही आप देखोगे, इफ द मार्केट वुड हैव बीन इन दिस रेंज इटसेल्फ, द मार्केट शुड बी अराउंड 46,000, 45,000। मार्केट शुड बी अराउंड दिस प्लेस, राइट? बट मार्केट्स आर एट 51,000। क्या ये किसी भी एंगल से लॉजिकल है? नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। अब आप देखोगे लोग बोलते हैं दिस टाइम इज डिफरेंट, मार्केट्स अभी भी ऊपर जाएंगे। हर्ष, क्यों? हम इमोशनली बायस्ड हैं, बिकॉज वी स्टॉक मार्केट्स में क्या होता है ना, व्हेन द मार्केट्स आर गोइंग अप एंड यू सी एवरीवन एल्स अर्निंग, आप बोलोगे यार मैं पैसे क्यों नहीं कमा रहा, मैं बेवकूफ हूं क्या? और आप पैसे डालोगे। और ये साइकोलॉजिकल चीज है। जरूर आई एम नॉट, इफ दिस इज हैपनिंग टू यू, यू आर एज नॉर्मल एज यू कैन बी। ये सबके साथ होता है। ठीक है, लाइक गिव यू एन एग्जांपल। अब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो नए स्टूडेंट्स ऑफकोर्स, जो नए हैं, जिनको एटलीस्ट 4-5 महीने ही हुए हैं हमारे साथ, उनको टाइम लगता है टू एडजस्ट टू द मार्केट्स एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द टाइम दे कैन गिव। बट जो मेरे स्टूडेंट्स 2-3 साल ओल्ड है ना, उनको पता है इस टाइम पे बेच देना चाहिए, बट स्टिल उनको बेचने में हेजिटेट कर रहे हैं। मेंटरशिप में जब कॉल उनके साथ हो रहे हैं, दे आर सेइंग सर बट लेट मी कीप 40%, सर लेट मी कीप 50%। दे आर नॉट willing to sell. क्यों? Because this is an emotionally challenging situation. यहीं पे होता है कि when I have to tell you, बेचो। अभी don't just take it as a tip, उसको मैं अभी बाद में बात करूंगा whether you should sell or not. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप देख रहे हो, एक इमोशनल रश क्या होता है कि this time it's different. Now let me give you a very simple example. ठीक है, अब आपको पता है फन फैक्ट दैट फ्रॉम 2016 टू 2019 हमने बहुत ट्रैवल किया था ऑल ओवर इंडिया। वी कवर्ड ऑलमोस्ट 100 कॉलेजेस एंड 27 स्कूल्स एंड 18 to 20 कॉर्पोरेट्स। ठीक है, तो वी यूज टू ट्रैवल पैन इंडिया फ्रॉम केरला टू देयर वाज भुवनेश्वर, देयर वाज देहरादून, देयर वाज मेरठ, देयर वाज रुड़केला, देन देयर वाज मुंबई, देयर वाज पुणे। काफ़ी ट्रैवल किया था हमने। अब वहाँ पे जाके ना हर सेशन में लोगों से, बिकॉज अब स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। सो जब मैं आता हूँ स्टूडेंट्स वैसे होता है यार स्टॉक मार्केट बड़ा बोरिंग होने वाला है। सो आई यूज अ लॉट ऑफ स्टोरीज, जैसे आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैं बहुत स्टोरीज यूज करने की कोशिश करता हूँ। सो मेरी फेवरेट स्टोरी थी, मैं सबसे पूछता था डू यू नो हु हर्षद मेहता इज? आउट ऑफ 100 पीपल ना, एंड दिस इज बिफोर 2019। ठीक है, नॉट बिफोर 2019, बेसिकली बिफोर Jan 2020। ठीक है, आफ्टर 2016 एंड बिफोर Jan 2020 सबसे पूछता था डू यू नो हु हर्षद मेहता इज, हु हर्षद मेहता इज। अगर 100 लोग होते थे ना, तो मे बी 10-20 टू रेज देयर हैंड्स एंड दिस बी हाँ सर सुना तो है नाम। और अब स्कैम 992 एवरीवन नोज हु हर्षद मेहता इज, राइट? अब थिंक अबाउट दिस,
व्हेन आई टॉक टू पीपल कि हर्षद मेहता का उस समय, हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम उस समय इतने लोगों का नुकसान गया था, बी इट इन द 2000 क्रैश, बी इट इन द 2000.com बस्ट, बी इट इन द 2008 रियल एस्टेट बस्ट, लोग कितने लोगों का नुकसान हुआ था। लोग बताऊं क्या बोलते हैं मुझे, हर्ष हाउ स्टूपिड वो थे, उन्होंने देखा नहीं पी कितनी हाई थी, उन्होंने देखा नहीं ये कितना हाई था। मतलब जस्ट इमेजिन हर्ष, व्हाई वुड समबडी इन्वेस्ट इन दैट सिचुएशन। एंड जब मैं भी हाइंडसाइड में सोचता हूं तो मैं सोचता हूं हाँ यार क्यों क्यों हर्ष मेहता सिचुएशन में वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे, देयर वाज नो फंडामेंटल एंड लॉजिकल रीजनिंग फॉर द मार्केट्स टू गो अप। जो हम अभी कर रहे हैं ना, आफ्टर 20 ईयर्स कोई अगर इंसान होगा तो वह हमारे बारे में यही सोचेगा कि हम क्या बेवकूफ़ हैं जो अभी भी मार्केट्स में पैसे डाल रहे हैं। When the PE is so high, when the markets have risen more than they should have been अगर सब normal रहता, and the markets have doubled in the past 9 to 10 months, कोई लॉजिकल इसका रीजनिंग है नहीं, बट तभी भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? लोग क्या बेवकूफ है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप हम सोच मगर मैं सोचता हूँ ना कोई बेवकूफ है तो बेवकूफी मेरी है। आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इज थिंकिंग दैट वे, बिकॉज वी आर इमोशनली डिजाइन्ड दिस वे। स्टॉक मार्केट्स इज वन गेम जो इतना इरेशनल हो जाता है, wherever the prices move higher people will buy more, whenever the prices go lower people will sell। ठीक है, आई गिव एन एग्जाम्पल। अब जब भी बुल मार्केट होता है जैसे अभी करंटली है, यहां पे प्राइसेस बढ़ी जा रही हैं एंड पीपल आर गेटिंग क्रेजी टू एंटर द मार्केट्स। आई कैन बेट इट फॉर अ फैक्ट, इफ यू हैव बीन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स, योर फ्रेंड्स हैव बीन अप्रोचिंग यू कि सर यार प्लीज मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दे। योर फैमिली रिलेटिव्स हैव बीन अप्रोचिंग यू, योर डैड हैज बीन अप्रोचिंग यू, योर फादर अर्लियर मस्ट नॉट बी ओके विद स्टॉक मार्केट्स, बट अब वो ओके हैं, अब वो भी इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो नीचे कमेंट करके लिखो, हाँ सर, माय फैमिली हैव स्टार्टेड टेलिंग मी टू इन्वेस्ट देयर फंड्स फॉर देम, माय फैमिली हैज स्टार्टेड टू इन्वेस्ट, माय फ्रेंड्स आर टेलिंग मी टू इन्वेस्ट देयर फंड्स ऑन देयर बिहाफ। आपके साथ होगा क्योंकि सबके साथ हो रहा है। अभी पीपल आर हंग्री, व्हेनेवर द मार्केट्स आर बुलिंग अप, लोग और खरीदना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव द फियर दैट दे गोना मिस आउट। वो देख रहे हैं मार्केट फिर ऑल टाइम हाई, 51,000 छू गया मार्केट, अब उनको लग रहा है यार हमने तो बस मिस कर दी, तो दे वांट टू एंटर द ट्रेन, सो दे विल बाय द थिंग्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। और जब यही मार्केट्स नीचे गिरते हैं ना, जब मार्केट्स नीचे क्रैश हो रहे होते हैं, तब कोई मार्केट देखता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। टू एक्सप्लेन इट टू यू मोर सिंपली, अगर जैसे आई गिव यू एग्जांपल, अब यू गो टू अ नाइकी शोरूम, आप नाइकी शोरूम गए, ठीक है, नाइकी शोरूम में डिस्काउंट चल रहा है 50% फ्लैट, 50% डिस्काउंट। आप क्या करोगे नाइकी शोरूम जाके? वी विल लूज आ शिट। ठीक है, हम बोलेंगे अरे यार ये भी दे, जूते का साइज देखो नहीं, एक साइज छोटा है, दे दे, शर्ट दे दो, ये दे दो, वी विल गेट एवरीथिंग। व्हाई? 50% फ्लैट डिस्काउंट, इट इज क्रेजी। तो डिमांड कहाँ जाएगी? बहुत हाई। अब वही सिचुएशन जब डिस्काउंट हट जाता है तो उस नाइकी शोरूम से विल यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड? विल यू ओवर बाय? नहीं। और हो सकता है यू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग फ्रॉम नाइकी बिकॉज नाइकी इज एक्सपेंसिव। बट इन स्टॉक मार्केट्स उल्टा है। In stock markets, when share prices get more expensive, people invest more. And when share prices get less expensive, cheaper, people don't invest at all. Rather sell. ये है displacement theory. Displace का क्या मतलब है? That something is not in its position. Displacement theory means irrationality in stock markets. जो अभी हो रही है. And abhi is the perfect time for you to understand it. हो सकता है you have been in the markets for the past 5 months, 6 months और आप अभी markets में आए हो, so I can imagine आपके लिए थोड़ा समझना मुश्किल है इसको to digest, because you need to experience it, जो मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। बट अगर आपको 1 साल से ऊपर हो गया है, you know what I'm talking about. अभी आपके पीछे सब आ चुके हैं कि यार मेरे पैसे इन्वेस्ट कर दे। क्यों? This is the displacement theory. This is the irrational behavior in stock markets. When markets बुल में होते हैं ना, जो अभी यूफोरिया इसको बोलते हैं, पागलपन। मतलब मानोगे नहीं, मेरी मॉम की किटी पार्टी के फ्रेंड्स हु हैव नो रिलेशन टू स्टॉक मार्केट्स, दे आर कॉलिंग मी एंड दे आस्किंग माई मॉम की हर्ष का नंबर दे दो, एंड दे आर कॉलिंग मी एंड आदित्य एंड आस्किंग मी अस फॉर स्टॉक मार्केट टिप्स। दे वांट अस टू इन्वेस्ट देयर मनी। अब मेरी मॉम की जो किटी पार्टी है, इट्स वो जो पूरी किटी पार्टी में लोग हैं, दे आर ओनली होम मेकर्स, दे हैव नो रिलेशन टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। बट अभी हो क्या रहा है? बिग बॉस में मैं देख रहा था कुछ, अभी मेरी वाइफ मुझे बता रही थी, पावर बता रही थी मुझे, दैट कुछ बिग बॉस में कुछ स्टॉक मार्केट्स की एक्टिविटी हो रही थी
एवरी सेकंड जगह स्टॉक मार्केट्स की बातें हो रही हैं, वेब सीरीज में स्टॉक मार्केट की बातें होती हैं. वाई? वो क्यों कर रहे हैं? इन दिस सिचुएशन स्टॉक मार्केट्स तो कहीं से रिलेटेड भी नहीं है फाइनेंस की वर्ल्ड. फाइनेंस की वर्ल्ड से डरते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेट है, बट अभी हर जगह बात हो रही है. क्यों? बिकॉज स्टॉक मार्केट इज बिकम कूल, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू लिसन टू इट. सेंसेक्स 50,000 टच कर गया है, लोग पागल हो चुके हैं, यूफोरिया आ गया है पूरा. यहां पे पूरी जनता मार्केट में घुस चुकी है. अब मुझे बताओ, जब जनता मार्केट में घुसती है तो क्या फायदा, प्रॉफिट होने वाला है? नहीं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है. क्या मार्केट इमीडिएटली गिर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं. एंड आई कांट से दैट. मेरे हिसाब से द मार्केट्स, फॉर मी द मार्केट्स आर ओवर प्राइस फॉर द पास्ट 6 months. I won't say overpriced. I would go as far as to say they are extremely overpriced. So, will the markets immediately fall? I don't know. Will the markets fall the next year, next 2 months, next 2 days? Nobody can say anything. Some people were predicting कि budget में गिरेगा, but वो भी नहीं किया because budget was good. So when will the markets fall? Nobody knows. But the thing is, रूल तो एक यहां पे पक्का है दैट जनता यहां पैसे नहीं कमाती है. सब जनता मार्केट में आ गई. इसका मतलब क्या है? भाई साहब अपने बैग पैक करो और जल्दी से निकल लो, वरना सबके साथ नीचे डूबना पड़ेगा. ये हर बार होता है. चलो एक और चीज आपको समझाता हूं. वेन योर पेरेंट्स टेल यू और योर फैमिली फ्रेंड, जिसने भी आप किसी ना किसी ने तो आपको बोला होगा दैट स्टॉक मार्केट से गैम्बल या मत कर, बहुत नुकसान हो चुका है मेरा या मेरे फैमिली फ्रेंड का या मेरे फ्रेंड का, राइट? जिसका नुकसान हुआ है उसके पास जेन्युइनली जाओ. एंड इफ इट्स योर पेरेंट्स देन यू लकी, यू कैन एक्चुअली गेट दिस एक्सपीरियंस. जाओ और उनसे पूछो आपने कब इन्वेस्ट किया था. 90% केसेस में आई कैन बेट यू फॉर अ फैक्ट इन्वेस्टमेंट होगी या तो इन 1992, यार इन 2000.com बर्स्ट, इन 2008 रियल एस्टेट बर्स्ट. आप देखना इन्वेस्टमेंट तभी होगी व्हेन द मार्केट्स आर एट द पीक, बिकॉज दिस इज हाउ द डिस्प्लेसमेंट थ्योरी वर्क्स. जब मार्केट्स इरैशनल लेवल्स पे जाते हैं तब पूरी जनता इकट्ठा हो जाती है टू बाय द स्टॉक. व्हाई? बिकॉज वी आर स्केयर्ड टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी. ये स्टॉक मार्केट्स हैं. और हर बार को तो स्टॉक मार्केट साइकिल क्या होता है? व्हाट इज द स्टॉक मार्केट साइकिल? यहां पे नए इन्वेस्टर्स ना नई फसल की तरह होती है. नई फसल उगती है, वो कटती है, फिर अगले सीजन में दोबारा नई फसल आती है, नई न्यू क्रॉप्स हार्वेस्टेड, फिर वो कटते हैं, फिर आके फिर वो कटेंगे. 95% लोग यहां पे कटते ही रहेंगे, और जो 95% लोग कटेंगे वही बाद में जाके बोलते हैं दैट स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल. Why? Because stock market is not a game of numbers. To quote Howard Marks, numbers is the last thing you need to be in stock markets. It's more of your psychological, emotional balance. होता क्या है? मार्केट्स बुल पे गए, एकदम ऊपर पहुंच गए, पूरी जनता आ गई, अरे 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 मार्केट्स 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 मार्केट्स, सब पैसे इन्वेस्ट कर देंगे. ठीक है, सब नए इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, सबका इस टाइम पे स्टॉक मार्केट्स पैशन बन जाएगा. स्टॉक मार्केट्स विल बी नंबर 1. ठीक है, अब जैसे ही मार्केट्स पे क्रैश करने लग जाएंगे, सारे के सारे बेच देंगे, सब खत्म हो गया, स्टॉक मार्केट रूइंड, 95% पीपल विल फिनिश ऑफ देयर फंड्स. और वही फिर वो जाके बोलेंगे स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट सट्टा है. फिर आप बोलेंगे अरे भाई हमने बहुत किया है स्टॉक मार्केट, बहुत सट्टा है, हमने सब समझ चुके हैं, हमने तो बहुत किया मार्केट्स. आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ देम, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी. और फिर दोबारा व्हेन द मार्केट्स गो अप, तो एक नई क्रॉप ऑफ ब्रीड ऑफ पीपल आते हैं हु स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और फिर वो जाते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर वो जाते हैं. ओनली 5% पीपल रिमेन. ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं. मुझे 11 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट्स में, मेरे फादर को 40 साल से ऊपर हो गए स्टॉक मार्केट्स में. हर बार यही होता है. आई थिंक शायद मैं अकेला ही हूं जिसने स्कूल में बोला था कि मैं स्टॉक मार्केट्स में आना चाहता हूं, कॉलेज में स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट्स. और मेरे बहुत सारे बीच में दोस्त थे जिनको स्टॉक मार्केट में बीच में इंटरेस्ट आया था, जब मार्केट ऊपर था, लॉस हुआ, सब चले गए. हो सकता है उस सिचुएशन आपके साथ भी हो, और अगर होगी तो आपको आप ये वीडियो याद कर लेना जब होगी तो. एंड ये भी याद करना दैट इट इज़ अ नॉर्मल थिंग टू हैव. क्यों? साइकोलॉजिकल बैलेंस चाहिए. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट थ्योरी कि वी आर सो इरैशनल इन मार्केट्स. अब मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली मेरी किसी वीडियो में कमेंट आया था, एंड इट वाज अ कंप्लीटली स्टूपिड कमेंट. एंड दैट पर्सन सेड व्हाई डू वी नीड दिस वीडियो. उसमें अगेन आई डोंट वांट टू नेम दैट वीडियो, और आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन, वरना हेट कमेंट्स होंगे, तो बस नहीं जा रहा. बट आई वॉन्ट टू शो यू कि ये कितना किडिश और चाइल्डिश कमेंट था, कि मुझे कमेंट पढ़ते पता चल गया था कि इस आदमी ने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है. उसने लिखा था कमेंट में, व्हाई डू वी नीड दिस वीडियो, इट इज सो ऑब्वियस, यू शुड इन्वेस्ट इन एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा एंड एनी गुड सेक्टर एंड होल्ड इट फॉर 5 years. बस यही तो करना है मार्केट्स में. इट इज सो ऑब्वियस. ये पढ़ के यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बच्चा अभी अभी मार्केट्स में आया है. ये इतना ऑब्वियस होता दोस्तों, सब पैसे कमा रहे होते ना. क्यों? मार्केट्स ऑन पेपर इज ऑब्वियस. मार्केट्स में पैसे कमाना ऑन पेपर इज ऑब्वियस.
But in reality, psychology comes into the picture, displacement theory comes into the picture, you telling yourself this time is different comes into the picture. I can tell you veteran investors जो मेरे students हैं, veteran investors, उनको भी difficulty हो रही है कि हर sir how can I take my money out of stock markets green में है, markets ऊपर जा रहा है, हर रोज markets ऊपर जा रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं. और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, मुझे भी एक बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी मेरी भी है, मुझे भी बहुत डिफिकल्टी होती है. बट द फैक्ट इज वी नीड टू स्टिक टू अ सिस्टम. और फैक्ट यही है दैट मार्केट्स विल कम डाउन. व्हेन? आई डोंट नो व्हेन, बट विल दे? डेफिनेटली. बट आई नो वन थिंग फॉर सर्टेनिटी, 95% जनता यहां पे पैसे कमा ही नहीं सकती है. ये हार्श रियलिटी है. अभी मार्केट्स यूफोरिया में है, और जब मार्केट नीचे गिरता है, जैसे इन 2000, आई रिमेंबर व्हेन आई एंटर्ड इन 2010, ठीक है, तो जब मैं 2010 में मार्केट्स में आया था ना, to 2010 to 2012 it was only pharma industries that were doing well. Industries like जैसे Lupin Labs हो गया, ठीक है, then there was Aurobindo Pharma, all these companies were doing really well. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 2000 का क्रैश था ना, उसके बाद मार्केट बहुत स्लो था, और लोग मुझे बोलते थे, आई रिमेंबर, कि अरे हर्षा गलत टाइम में आ गए तो मार्केट्स में, अब तो मार्केट्स ठंडा है, मार्केट्स में कुछ नहीं है, वो ज़माने थे, अब तो मार्केट्स में कुछ नहीं है. और उन लोगों को क्या लगा, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, अब मार्केट्स कभी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं. हाँ, अब आपको हंसी आ रही होगी सोच के, बट उस समय एक्चुअली लोगों को ऐसा लगता, उस समय शायद मुझे भी लगता था यार कि शायद मार्केट्स दोबारा कभी चढ़ेगा ही नहीं. अब यहाँ पे है जहाँ पे लोग बोलने को बोल रहे हैं कि मार्केट्स कभी गिरेगा ही नहीं. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट थ्योरी. नाउ व्हाट शुड यू डू? Can you immediately change your psychology? नहीं. If you're new here, I want you to observe this. Small nuances. Are your friends and relatives coming to you asking about stock markets? आप stock markets में कैसे interested हो? Observe this cycle. ठीक है, क्योंकि ये तो रूल आप बांध के चलो that 95% people do not earn in stock markets. They will not, they have had not, they will not, and they have not. मैं उल्टा बोल दिया. They had not, they will not, and they would have not. पता नहीं, समझ गया ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर समझ गया ना. पॉइंट वो है, ठीक है. सो ये सब चीज़ें नुआंस, स्मॉल नुआंसेस नोटिस करो. एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस, अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल, नो, वॉच द मल्टी बैगर सेशन, जहाँ पे मैंने आपको बताया रियलिटी में इन्वेस्टिंग एंड फाइंडिंग अ मल्टी बैगर क्या होता है. दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. ठीक है, तो कमेंट करके मुझे नीचे बताओ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? डू यू अग्री विद मी और डू यू डिसएग्री विद मी? विच इज़ फाइन, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, सबके ओपिनियंस है. इफ यू डिसएग्री विद मी, नीचे लिख के बताओ. इफ यू अग्री विद मी, नीचे लिख के बताओ. इफ यू थिंक माई शर्ट इज लुकिंग गुड, नीचे लिख के प्लीज़ बताओ. ठीक है, बिकॉज न्यू शर्ट माई वाइफ गिव मी, तो उसको बताना, उसको अच्छा लगेगा, शर्ट अच्छी है. And yeah, so that was about it. This is the displacement theory in stock markets. And again, lastly, should you sell your stocks? Absolutely not. सबसे पहला, your reason for buying and selling should be the same. If you are trading, so trading, it should not matter to you. Why? Because trading में आपको volatility चाहिए, volatility in markets में है. Secondly, if you are invested for the ultra long term, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. अप्स एंड डाउन्स, इट वोंट मैटर टू यू. बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग, तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, उसने अभी तक आपको मोस्ट प्रॉब्ली सेल कॉल दे दिया होगा. इफ यू फॉलोइंग द आरओसी, इफ यू फॉलोइंग द पीई, इफ यू फॉलोइंग द बफेट इंडिकेटर, इफ यू फॉलोइंग एनीथिंग. बाय द वे, बफेट इंडिकेटर, इफ यू डोंट नो द इंडिकेटर वॉरेन बफेट यूजर्स, उसकी वीडियो इधर है, वो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट. राइट, सो या, that was for it for today. नीचे कमेंट करके मुझे बताओ. एंड इफ यू वांट टू अटेंड माय लाइव वेबिनार, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है. आई वांट टू सी यू देयर, आई वांट टू मीट यू लाइव, एंड आई वांट टू आंसर ऑल योर कंसर्न्स live. Right? So give my regards to your family, give my love to young ones. This is Harsh Goela from Goela School of Finance, financially empowering you.